aspect of my journey with Guruji. It was maybe a few years into, going to Guruji. And you know how faith has a mind of its own, as we know. And it wavers. Sometimes when the going is good, it's strong. And when the going becomes weak, or it's not going according to our wishes, then our faith kind of wavers and it just becomes weak. It weakens. So mine also happened that way. There was a phase in my life I was asking for Guruji for something in particular, and when I lost patience, he had just said one thing to me right at the beginning of my journey. He said, "Tu na diya jalaya kar, ghee ka diya mere swaroop ke aage." So I used to do that, and one day I just decided I don't want to go to Guruji ever again. So I didn't go for about maybe a month or so, maybe less slightly, but I just stopped going. And I was lighting my diya on that particular day, and it just wouldn't light. It was not lighting. So I practically finished the entire matchbox and it was not lighting. So in my head, questioning head, I just said कि Guruji मुझे भूल गए हैं, अब मुझे Guruji प्यार नहीं करते हैं. And I just dismissed the whole thing as Guruji, he probably doesn't love me anymore. So this was the negative thought going on in my head. And then there was one matchstick left. And I just lit it, and it just again didn't light. And I threw it, I remember, on my mirror in anger. And I went into my bathroom, and I came out, and the diya was lit on its own. So when the diya lit on its own miraculously, and the flame was very high, flame was really vibrant, bright, and high. At that point, I just said, okay, tonight I will go to Guruji. And it had been practically a month or so of my not going. So when I entered Chota Mandir, in those days he used to sit in Chota Mandir. So as I entered, and as I was about to bow to him, he just said, "Fir diya jal gaya. Tusi pulja deo, Rab ni pulda." So like they say, if you don't feel close to God, guess who moved? It wasn't him, it's us. We move, we falter, our faith wavers, and it doesn't have that, degree of strength that is required to stay connected. And then he just said, "Subah ka bhula, sham ko lautaye, to usko bhula nahi kehte." So I think we're all like this. This diya satsang is relatable to most of us, because even in today's world, which we're living in this coronavirus age, as we can say, unfortunately, because it's going to last for a while, I think the meaning of satsang has been redefined, and satsangs are absolutely imperative to our growth, to our learning. And but since we are confined in our own space, I feel we are now, when we actually attend a satsang, it's going to be for the real deal. All of us, when we go back to being in a community spirit, and satsang as Guruji had created that platform, I think most of us are going to have the right spirit of being in a satsang. Because like he used to say, कि चार तरह दे लोग आते ने मेरे को, सुंगा, चुंगा, उंगा और डूंगा. डूंगा बहुत कम होते हैं. तो बाकी like सुंगने आते हैं, social networking, they're fascinated by the who's who coming there, because अब तो सब गुरुजी के पास जाते. Even those days, when there was a handful of us, Menka Gandhi hoti thi, and Arun Shori ji hote the. There were so many names I can throw. And it was Sharmila Tagore, Ayuye. So the point is, we get fascinated by the people. So our focus shifts from Guruji to
the people who are going to Guruji, especially if they're of high profile status. But now in the confines of our space, I feel, and I really feel this because I'm experiencing it, and I'm sure most of you are experiencing this, that our connect to Guruji is deepening. So hum dunga, like he said, unga, chunga, sunga and dunga. So dunga is those who actually want to connect with him at a deeper level. And it's not a shallow level कि दुकान खुली हुई है गुरुजी ने and आप आ जाते हो मत्था टेको, and then does that depth that we seek does come through repetition. बार बार हम सत्संग जब सुनते हैं घर में, अब वाक्य को imbibe करते हैं, when we really absorb it and try and understand it, जब हम उस पे अमल करते हैं, तो I really feel that our mindset changes. We start seeing things differently. जब ये कोरोना वायरस, जब पहले लॉकडाउन अनाउंस हुआ, तो I think we all of us got anxious कि कितनी देर के लिए होगा, कब तक होगा, what happens after the lockdown is lifted, what about our finances, what about our health, are we protected? Now as time is going on, we're realizing how blessed we are, because we all have this opportunity. It's a rare, unprecedented opportunity to connect to him on a much deeper level than what we were. Satsangs is very important, but the purity and piety of satsang somewhere may have been melted, you know, because like I said, there are different types of people coming. So, you know, so I just feel that when now the satsangs were growing exponentially, be it Delhi, Bombay, world over, every continent, like Guruji said, मेरी जोत जलेगी जगह जगह, across every continent, country, city. उन्होंने बोला था ये, and हो ही रहे थे, हो रहे हैं, अब तो और भी हो रहे हैं, लेकिन now it's happening on a deeper level, on a purer level, I would say. अब कोई नहीं है, अब सिर्फ आप और गुरुजी हैं, and that's what he wanted. He wanted that soul to soul connection अब बनाओ, कि आप सिर्फ direct one to one, soul to soul connection बनाओ, अपना connection बनाओ, और वो बहुत ज़रूरी है. बाकी जितना आप सत्संग सुनोगे, शब्द सुनोगे, सत्संग सुनने वाला और सुनान वाला दोनों दी मेहर होती है, गुरुजी used to say. So आप जितना सुनोगे, चाहे सत्संग हो, चाहे शब्द हो, चाहे वाक्या हो, the point is your mindset starts changing. ये गुरुजी ने ऐसा हमें मतलब ऐसा उन्होंने बनाया है, रिलीजन को बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है. कैसे हमारी प्योरिटी होती है, हम तो सब मैली चादर ही लेके आते हैं गुरुजी के पास, हम ये मैली चादर लेके आते हैं, कितनी मैल हमारे वेसल के अंदर, ये बॉडी के अंदर, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता शब्द सुनते सुनते, सत्संग सुनते सुनते हमारी प्योरिफिकेशन होती है. हमने क्यों सुनाया आपको ये दिया का, क्योंकि हम सब ऐसे हैं. तो ये ना समझे कि आपका फेथ वीक हो जाता है. You know, my faith really weakened for a whole month. That's a long time. Now I can't even conceive of not being connected to Guruji even for a day. But that point, because I had questions in my head which were not being answered, and a lot of people go through this, therefore it's relatable, I feel, you know, I just lost sight. I just felt, lost sight of course, पर मुझे पूरा भरोसा नहीं था गुरुजी पे. आई थिंक दैट्स द मेन पॉइंट. मैंने सरेंडर तो खैर किया ही नहीं हुआ था. लाइक गुरुजी यूज्ड टू से, तू सरेंडर कर जा, बिकॉज हम रियलाइज करते हैं हमने कब सरेंडर नहीं किया, जब हम अभी तक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्या होगा लॉकडाउन के बाद, क्या होगा फाइनेंसेस के, जॉब्स कट्स हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो जाएंगी. पर जब आप अपनी डोर पूरी तरह से गुरुजी के हाथ में छोड़ देते हो, तो वो क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं. खत्म नहीं हो तो रिड्यूस हो जाते हैं. The amount of questions we have in our head, the amount of inquiries we have, they reduced. Why? Because you have this absolute trust कि जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है. इतना हमें कहाँ मौका मिलता है, टाइम मिलता है गुरुजी से डीपली कनेक्ट होने के लिए. आई डोंट थिंक वी हैड टाइम. सत्संग जा रहे थे पर वापस क्या ला रहे थे, बहुत कम. वहाँ जा रहे थे, सुनते रहते थे, ओ वो भी आया है, वो भी आया है, और संगत कितनी बढ़ गई है, 500 हो गया दुबई में, 1000 हो गए, यही देखते रहते थे. क्योंकि ह्यूमन
माइंड ऐसा है। एंड हम सुनते रहते थे, थोड़ा सा शब्द सुन लिया ठीक है, पर फिर हमने कुछ सीखा नहीं। लेकिन अब सीख रहे हैं, और ये जो मौका है प्राइसलेस है। दिस टाइम दैट वी हैव ऑल बीन ब्लेस्ड विद, हमें सांस हमारी चल रही है। जितना हम कम न्यूज़ सुनेंगे उतना रियलाइज करेंगे कि हम एक्चुअली कितने ब्लेस्ड हैं, बिकॉज वी हैव दिस प्लेटफॉर्म विद गुरुजी टू डीपन आवर कनेक्ट। और ये हर सांस से हम गुरुजी से जुड़े हैं अब, और डीपली टू नो आवर ट्रूथ, व्हाट इज माय ट्रूथ। इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन। संगत तो बहुत बड़ी है और बहुत संगत है, लेकिन एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन ट्रूथ, रिमेंबर दैट। आपने अगर गुरु जी को शिव जी के रूप में देखना है तो वो शिव जी आपके लिए। राम के मुंह में गुरु जी कहते थे जोत था एक ही है, पर तुसी नाम ले वो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करो कि मैं शिरडी साईं बाबा की भक्त थी और अब मैं गुरु जी के पास आई हूँ, मैं शिरडी साईं बाबा को मतलब मैं अनफेथफुल तो नहीं हो रही, डिसलॉयल तो नहीं हो रही। इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज जोत एक ही है। अब जिसका नाम लेना है लो, पर लो तो सही, एंड लेते रहो, बिकॉज अपने आप फिर आपकी रियलाइजेशन बढ़ती है। जो इनलाइटनमेंट होती है, ज्ञान आता है, वो ज्ञान तभी आता है जब आप बार बार रिपीटेडली सुनते हो शब्द को और रियली मानते हो कि गुरुजी आपके साथ है। एंड गुरुजी का फॉर्म एक नहीं है, ही इज फॉर्मलेस। लाइक ही सेड, मेरे फॉर्म ना अटैच हो, मैं तो फॉर्मलेस था, मैं तो किसी भी रूप में आ सकता हूँ। एक बार मैं बैठी हुई गुरुजी के पास, एंड क्या हुआ, एक आंटी आई और मत्था टेका और कहती है कि गुरुजी आप मेरे घर में कभी नहीं आते, आप आओ ना। तो गुरुजी ने कहा कि मैं आया सी, पर तू मैनू बाहरों ही भेजता सी, तू पानी तक नहीं पिलाया, मैं तो सिर्फ पानी मंगया सी। तो दैट लेडी थॉट एंड पॉन्डर्ड एंड सेड, नहीं आप तो नहीं आए थे। कहती कमली मैं आया सी एक वो अलग रूप लेके, मतलब ऑफ अ बेगर्स रूप, एंड तू मैनू बाहरों भेजता सी, हूँ नहीं मैं आवांगा। सो ही हैज शोन अस एंड डेमोन्स्ट्रेटेड टू अस कि वो किसी रूप में भी आ सकते हैं और आते हैं, कभी भी आ सकते हैं और कभी भी आते हैं, चाहे आपके सपने में आए, चाहे कोई दरवाज़ा खड़काए। बी काइंड टू एवरी काइंड। आपको नहीं पता वो कौन है, वो किस रूप में आपको ही ब्लेस करने आया है। अगर आप किसी को पानी पिला रहे हो तो आपकी ब्लेसिंग्स हो रही हैं, आप अच्छा कर्म कर रहे हो। देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज टू वॉच योरसेल्फ, और नेगेटिविटी लानी नहीं है। आई नो दैट यू नो वी आर ऑल गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी का भी एक ही सोल्यूशन है, एक ही रेमेडी है हर क्वेश्चन की। आपकी एक ही रेमेडी है, दैट इज गुरुजी। गुरुजी की वाणी, गुरुजी के वचन, गुरुजी का हुक्म में रहना। क्या हुक्म है हम सब जानते हैं उनका क्या हुक्म है, पर हम इम्पेशेंट हो जाते हैं और हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। आप बताओ ना एंग्जाइटी का क्या यू नो डायरेक्ट रेमेडी क्या है, इजी रेमेडी, इंस्टेंट रेमेडी। इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है गुरुजी को प्यार करना और पाना, ये एक जर्नी है। आहिस्ता आहिस्ता जितना सुनोगे, जैसे एक बर्तन होता है बहुत गंदा, कई लेयर्स होती हैं उसकी मैल की, क्योंकि जमी होती है वो कई सालों से, कई जन्मों से। अगर हम साफ करेंगे तो एक बार तो नहीं साफ हो जाएगा ना, वो आहिस्ता ही आहिस्ता होता है, पर इन द एंड इट गेट्स पॉलिश्ड, इट गेट्स क्लीन्ड, बिकॉज वो गुरुजी की मेहर है। वो सफाई कर रहे हैं गुरबानी के थ्रू, सत्संग के थ्रू। अपने अकेले बैठो, क्योंकि हम अकेले नहीं होते। जब हम बैठते हैं अकेले गुरुजी के पास, तब भी हम अकेले नहीं होते, गुरुजी साथ होते हैं। ही इज इंस्पायरिंग अस टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस। अब टाइम आ गया प्योरिफिकेशन का। वर्ल्ड की प्योरिफिकेशन तो हो ही रही है। व्हाई? बिकॉज नेचर इज प्योरिफाइंग इट, नेचर इज रिक्रिएटिंग इटसेल्फ, इट इज repairing itself, as we all know and understand. Nature had enough now of our meddling with it. I'm sure you'll agree that we meddled with nature so much that finally we got a slap on our face. Now we're all enclosed in our rooms, in our homes, and the animals are having a field day, the way it's meant to be. But if we were able to strike a balance, and Guruji ने हर चीज़ हमें moderation सिखाई है, balance सिखाया है। There is no such thing as an extreme view on anything. वो ये भी नहीं कहते थे 10-10 घंटे पाठ करो, कहते थे सब कुछ करो, दुनिया चाहे सब कुछ करो,
पर ए भी करो. द प्रॉब्लम विद अस इज वेयर डिड वी लूज आवर बैलेंस? बिकॉज हम सब कुछ करने लगे और ये नहीं कर रहे थे, ये सुपरफिशली कर रहे थे. सत्संग में बुलाया, किसने बुलाया? फलाने ने बुलाया, उसका नाम है बहुत, वहां जाना है, उसके लिए जा रहे थे, गुरुजी के लिए कम जा रहे थे. तो आई थिंक नाउ वीव लर्न्ड लेबल्स डोंट मैटर, ब्रांड्स डोंट मैटर, कौन बुला रहा है कौन नहीं बुला रहा. द आइडिया इज, द ऑब्जेक्टिव इज टू कनेक्ट टू गुरुजी and always to keep the focus on him. I remember when Guruji left his body and there were a lot of questions in people's head कि अब क्या होगा, Guruji चले गए, we felt orphaned and satsangs had just started, so the questions were very odd. People were, you know, and I realized it was very irrelevant. Like people say, oh आप मेरे सत्संग नहीं आए last week, आप मेरे सत्संग नहीं आए, आप कैसे नहीं आए मेरे सत्संग. So the point is, it's not our satsang, it's Guruji's satsang. It's nobody's satsang, it's only his satsang. और नहीं आए तो वो गुरुजी ने बुलाया ही नहीं. एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा हैविली, एंड संगत ने कहा कि गुरुजी बहुत संगत कम आई आज. तो गुरुजी ने कहा संगत कम आई नहीं, मैं बुलाई काट है. सो नथिंग हैपन्स विदाउट हिज विल. और ये सोशल गैदरिंग्स नहीं है कि आपने किसी को सत्संग बुलाया, वो आई नहीं, आपने गिला शिकवा करने शुरू कर दी. दिस इज हिज कॉलिंग. इफ यू रियली बिलीव एंड लव एंड सरेंडर टू गुरुजी, देन टेक इट दैट ही इज टेकन ओवर योर लाइफ एंड व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस बाय हिज ग्रेस एंड बाय हिज विल. सो मैंने आपको दिया का सत्संग सुना दिया, जो कि बहुत अमेजिंग था, बिकॉज अपने आप दिया कैसे चल सकता है वो गुरुजी जाने, क्योंकि गुरुजी ने जलाया था. एंड जब मैं मंदिर गई तो जैसे मत्था टेकी तो गुरुजी ने कहा कि दिया जल गया, एंड ही नोज एवरीथिंग. एक दिन बोले कि तेरे कार दे बाहर बड़े जाल ने. तो मैं बड़ी वो हो गई, और जैसे कहते हैं ना, मैं बड़ी डिफेंसिव हो गई. मेरा घर तो बड़ा साफ है, हाउ कैन गुरुजी से मेरे घर के बाहर जाल है? मेरे घर के बाहर जाल नहीं है, मैं तो रोज सफाई कराती हूँ. तो गुरुजी कहते कार जाएंगे ना आज, तो जाल साफ करवा ली. तो आई वॉज वेरी डिफेंसिव एंड थोड़ी सी अफेंडेड भी हो गई कि गुरुजी कैसे कह रहे हैं मेरे घर में जाल है. आई वेंट होम तो जाल ही जाल थे. तो ऑब्वियसली सफाई नहीं कराई थी ठीक से. तो कहने का मतलब है ये छोटी छोटी चीज़ों से कि गुरुजी हर चीज़ जानते हैं हमारे बारे में, क्या हमारे मन में है. हम सोच रहे होंगे कि कितना अजीब टाइम आ गया है, रोज़ सत्संग हो रहे थे पूरे वर्ल्ड में, और रोज़ हम ब्लेस्ड हैं कि अलग अलग सिंगर्स को सुन रहे थे, कितनी महफिलें गुरुजी हमें इंजॉय करा रहे थे. एंड सडनली नाउ वी आर आइसोलेटेड, हमें एकदम ऐसे लगता है ओ गॉश रियली, इतनी महफिल से एकदम एक्सट्रीम पे आके हम अकेले हो गए हैं घर में. कितना अजीब लगता है ना. लेकिन एक्चुअली एक बच्चा भी नहीं सुन रहा होता ना, तो हम उसको डांट लगा देते हैं कि तू होमवर्क क्यों नहीं कर रहा, समझ क्यों नहीं रहा अपने लेसन, तू क्यों बार बार फेल हो रहा है, तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो. हम नहीं अच्छे से पढ़ रहे थे वो वाणी को, हम नहीं अच्छे से समझ रहे थे, हम अच्छे से इम्बाइब नहीं कर रहे थे, हम इंटरनलाइज नहीं कर रहे थे. जैसे पढ़ना हो तो बार बार पढ़ना पड़ता है, वो नहीं कर रहे थे. हम शालो हो गए थे. हम बस सत्संग में जाते थे तैयार त्यूर होके, बेस्ट कपड़े बेस्ट डायमंड्स पहन के बस बैठ जाते थे. सोल नहीं कनेक्ट हो रही थी. हम अब सोल टू सोल कनेक्ट हो रहे हैं, और इसलिए ये ब्लेस्ड टाइम है. आप अंधेरे में हमेशा रोशनी को देखो. कहते हैं ना, अगर इफ देयर इज डार्कनेस व्हाट डू यू डू, आप एक कैंडल जलाओ, अपने आप रोशनी आ जाएगी. तो वो रोशनी यही है कि आप गुरुजी का नाम ले लो, अपने आप वो जोत जलेगी, आपके अंदर वो जोत जलेगी, और आपका सोचने का तरीका, देखने का तरीका सब बदल जाएगा. और यस वी आर विद द फैमिली, पर अकेले, मैं जब बोलती हूँ कि अकेले हैं तो अकेले मीन्स कि हम वो महफिल में नहीं हैं, हम पूरी संगत में नहीं हैं. लेकिन है, गुरुजी ने वो भी सिंप्लीफाई एंड फैसिलिटेट कर दिया कि यू लिसन एंड यू शेयर योर सत्संग्स यू नो ऑनलाइन, एंड दिस इज द वे फॉरवर्ड. इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल वे. गुरुजी कहते हैं मैं हर चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ प्रैक्टिकल दिखा रहा. So now it's such a positive time because we actually have time to go within and to deepen our connect. तो
एक दिन क्या हुआ, मैं बैठी थी एंड मैं गुरुजी के पास चले गई जल्दी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि तू 7 बजे आया कर जब संगत लगती है। मैं 5 बजे पहुंच गई। आज जब 5 बजे पहुंची तो एक लेडी बैठी थी गुरुजी के साथ, पाकिस्तान से, एंड बहुत खूबसूरत थी। एंड एज आई बाउड, गुरुजी ने कहा फिर 10 तो गुरुजी ने कहा कि 10 तो चाय पीएंगी? ऐसे हाँ जी गुरुजी मैं चाय प्रसाद पीऊँगी। लेकिन वो मेरी नज़र सिर्फ उस लेडी पे थी। बहुत लोगों ने सुना हुआ है ये ग्लो वाला सत्संग, बट इट्स रियली नाइस। एंड देन आई जस्ट सेड हाँ जी गुरुजी मैं पीऊँगी। एंड दिन में एक लेडी आई थी एंड वो उसने सॉरी लेडी आई थी, मैं कह रही हूँ मेरी फ्रेंड आई थी, उसने चाय पी के गुरुजी के आगे जूठा रख दिया। तो मैं बहुत अफेंड हो गई, लाइक वी डू गेट अफेंडेड। तो मैंने कहा गुरुजी के सामने जूठा नहीं रखते। तो वो कहती ठीक है, यू आर ओवर रिएक्टिंग बट इट्स फाइन, आई वोंट कीप द जूठा। दैट इवनिंग व्हेन आई वेंट, वो कहते हैं गुरुजी कि चाय प्रसाद मंगवावा। मैं कहा हाँ जी गुरुजी मंगवा दीजिए। एंड मेरा ध्यान वो सिर्फ लेडी भी था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उसकी स्किन ग्लो कर रही थी एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल स्किन शी हैड। एंड बिकॉज आई हैड स्किन कैंसर, आपको सबको पता ही है मेरा सत्संग कि जब मुझे स्किन कैंसर हुआ गुरुजी ने ठीक किया, तो उस टाइम तो मेरा स्किन एकदम रेड ब्लैक सब कुछ था एंड आई कुडंट स्माइल। जब स्माइल भी करती थी तो क्रैक होती थी सारा फेस। तो आई यूज टू एडमायर वुमेन हु हैड ब्यूटीफुल स्किन्स। सो वो गुरुजी कहते चाय प्रसाद आ रही है पी ले। तो आई वॉज ड्रिंकिंग इट एंड आई वॉज लुकिंग एट दैट लेडी, बस ध्यान उसी पे था, गुरुजी पे था ही नहीं, साइलेंस था। गुरुजी बैठे हैं अपने शॉर्ट्स टी शर्ट और ट्रेनर्स में एंड वो लेडी गुरुजी के पाँव दबा रही है एंड वो चाय पी के, थोड़ा सा चाय प्रसाद पी के गुरुजी के आगे रख देती है चरणों के पास। तो मेरे थॉट्स एकदम बदल जाते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल वुमन टू व्हाट अ शेमलेस वुमन, ये कैसे झूठा रख रही है गुरुजी के सामने। तो फिर मैं आंख बंद कर लेती हूँ, ना मैं गुरुजी को देखती हूँ और ना ही मैं वो लेडी को देखती हूँ। तो मैं अपनी आंख बंद कर लेती हूँ, सोचती हूँ व्हाट अ शेमलेस वुमन, कैसे हिम्मत हुई झूठा रखने के लिए गुरुजी के चरणों के पास। गुरुजी स्माइल करने लग जाते हैं और गुरुजी एकदम स्माइल करते हैं और कहते हैं कि या थैंक यू। सो गुरुजी स्माइल करते हैं और कहते हैं कि नीता नू समझा कि गुरुआं दे सामने झूठा नहीं रखेदा, फिर तेरी ग्लो दे बारे गल करना, तेनू ग्लो चाहिए है। आई वाज सो शीपिश, सो एम्बैरस्ड। आई सेड गुरुजी पता नहीं। ही सेड तेनू ग्लो चाहिए है तो रब को रब मंगला, ग्लो ही ग्लो है। एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इवन देन, बिकॉज उस क्लास में अभी भी पता नहीं कौन सी क्लास में हूँ, बिकॉज गुरुजी कहते मैनू पता है तुसी किहड़ी क्लास विच हो और तुसी सिर्फ आज्ञा पालन करनी है गुरु दी, सिर्फ हुक्म विच रहना है, उनका हुक्म मानो बस। एंड गुरु जी को मानो, गुरु जी की भी मानो, अपनी ईगो में ना रहो। कहते से ना जूती उतार दो तो अपनी ईगो भी चटके आया करो। इससे बस ट्रूली नाउ इज अ टाइम टू आस्क फॉर द रियल डील कि गुरु जी मुझे मेक मी वर्दी ऑफ योर लव, मेक मी वर्दी ऑफ। अब बहुत अच्छा, like I said, I'm repeating myself, it's a beautiful platform that we've been given. ये opportunity दोबारा नहीं आएगी। जब लॉकडाउन खुल जाएगा हम फिर वही distractions, वही दुनिया में, and we again disperse। अभी तो family इकट्ठी है, अभी हम you know we have this beautiful family unit, अभी प्यार मिल रहा है, प्यार दे रहे हैं। जो जो नहीं कर रहे थे, now we have got an opportunity to do it again, to be with our family and to love our family. So it's a fantastic opportunity, and now is a even better time to connect to him and to love him more on a deeper level. So वो spiritually हमें elevate कर रहे हैं. We are evolving only if we want to evolve, because you will only get what you want. So जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा, because you know कहते सी ना तुहानू लेना भी आना चाहिए, मैं तो देना आया। So लो आप, ये time है लेने का, blessings, and really उनकी real blessings जो हैं। नाम कहते थे ना गुरुजी तू रब को लो रब मंगला है। वंस यू नो आई कहते तेनू ग्लो चाहिए तो रब को लो रब मंगला है, ग्लो ही ग्लो है। एंड सीरियसली उन दिनों में नहीं समझ आई कि ये क्या होता है। कहते असली चीज़ मंगला है, मैं तो देन आया, कोई लैंदा नहीं है।
एंड आई थिंक दिस स्टिल अप्लाइज टुडे कि बहुत लोग, कम लोग हैं जो मांगते हैं वो असली चीज़। एंड इसलिए कहते थे मनो मंगो नहीं, बिकॉज हमें मांगना नहीं आता, हम मांग के अपनी मांग छोटी कर लेते हैं। सो आप नहीं मांगो, मांगना है तो असली चीज़ मांगो, नहीं तो दुनिया की चीज़ें ना मांगो। बट जब हम अपना फोकस गुरुजी भी रखते हैं तो अपने आप अगर नाम मांग लिया तो पीछे पीछे दुनिया की चीज़ें भागेंगी आपके पीछे। और बाकी डोंट वरी, कहते थे ना चिंता नहीं, चिंता नो चिंतन में बदल दो। सो डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन हिम एंड ऑल योर वरीज विल डिजॉल्व। एंड जो बाद में होगा लॉकडाउन के, वो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, बिकॉज स्पिरिचुअली ही स्ट्रेंथनिंग यू। एंड गुरु जी हमेशा बेस्ट ही देते हैं हर संगत को। अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, आपको पता नहीं उन्होंने क्या देना है। मे बी ये प्योरिफिकेशन टाइम है, इट्स अ टाइम ऑफ क्लेंजिंग। तो ये क्लेंज हो रहे हैं हमारे कर्मास, एज आई सी इट। नेचर्स क्लेंजिंग आउटसाइड, इनसाइड गुरुजी हमें क्लेंज कर रहे हैं, हमारे वैसल। तो जो ये अब आएगा टाइम, ये न्यू वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं हम, नया वर्ल्ड, नया जमाना, तो नई नॉर्मल, देयर इज अ न्यू नॉर्मल इमर्जिंग एज वी ऑल नो। सो ये वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। उनके नाम के साथ, उनको गुरुजी के संगत, ट्रू संगत बन के हम अब दरवाज़ा खोल के निकलेंगे दुनिया में। अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, सो ऑलमोस्ट लाइक प्रेप टाइम, प्रिपेयर कर रहे हैं। ये परीक्षा टाइम है, और आप जितना नाम लोगे उतना कल्याण होगा। जितना आप गुरुजी को दिल से प्यार करोगे उतना आपकी दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। वरी तो करना नहीं। वरी मीन्स कि हमारा फेथ पूरा नहीं हुआ, हमारे पूर्ण गुरु के में हमारा जो फेथ है, जो सरेंडर है, वो हमने किया ही नहीं है। बिकॉज वरी मीन्स कि हम अभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं, कि हम अभी भी सोच रहे हैं कि गुरुजी है या नहीं है, गुरुजी हमारे साथ है या नहीं है। जब मुझे ऑटोइम्यून डिजीज़ का वो हुआ था डायग्नोज, एंड इट वाज अ वेरी बैड टाइम फॉर मी, बिकॉज फ्रॉम हेड टू टो अगेन आई वाज कवर्ड इन दिस घासली रैश। मेरे खून निकलता रहता था, फेस में भी, अगेन लेग्स में भी, एंड आई वाज ऑलवेज स्क्रैचिंग। तो बहुत ऑटोइम्यून डिजीज़ वाज वेरी वेरी सीरियस, एंड दिस वाज 2016 व्हेन आई वाज डायग्नोज्ड विद इट। और जब डायग्नोज हुआ, मेरे नीचे से ज़मीन हिल गई, बिकॉज डॉक्टर ने जो बोला मैं शॉक्ड हो गई। कि डॉक्टर ने कहा कि अनीता, तुम 50-50 चांस है अब सर्वाइवल का। तो हम सबको पता है, जितने जितने लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं, कि हमारी एक ही रेमेडी है गुरुजी, कि हम गुरुजी के पास जाएं, हम शब्द सुने, लंगर करें। कितना लंगर का रस, शब्द का रस, वही हमारी एक असली सोल की दवाई है। तो मैं गई बड़े मंदिर, कोने में बैठ के रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने 50-50 चांस दे दिया, पर मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। अब गुरुजी के बड़ा सामने तो कोई डॉक्टर बड़ा नहीं है ना, गुरुजी सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े डॉक्टर भी हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड भी है, सब कुछ है। तो मैं बैठी और मैंने सिर्फ इतना बोला कि गुरुजी मुझे अभी नहीं जाना, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, छोटे इन द सेंस कि उनकी अभी शादियाँ नहीं हुई और मैं अभी नहीं जा सकती। तो इतना ही कहा। फिर मैंने कहा लंगर से पहले, मैंने कहा गुरुजी आप मेरी बात सुन रहे हो? मुझे पता है आपका डेटाबेस इतना बढ़ गया, इतनी संगत आती है, मैं कौन हूँ, आप तो शायद सुन भी नहीं रहे मुझे। तो मैं कह के रो के लंगर किया और घर चले गई। और लंगर भी उस भाव से खाया। जब मैं लंगर करती हूँ, एंड आई थिंक नरेंद्र अंकल चाहे हो चाहे कोई हो, हम लंगर का इम्पोर्टेंस जो है ना हम समझते हैं। क्योंकि गुरुजी ने हमें उस टाइम जब हम लंगर करते थे, हम आंख भी नहीं मिलाते थे उनसे जो जिनसे हम लंगर कर रहे होते थे। आज थोड़ा सोशल हो गया, लोग लंगर करते करते भी पूछ लेंगे आप कैसे हो, आपके बच्चे कैसे हैं, चाहे बड़ा मंदिर हो, चाहे छोटा मंदिर हो, चाहे सत्संग में हो। लेकिन हम इतने, क्योंकि हमें गुरुजी ने सिखाया है और गुरुजी इतने स्ट्रिक्ट थे, और हम समझते हैं कि ये हम खाना नहीं खा रहे हैं, हम ये दवाई ले रहे हैं, और दवाई लेते देते उस भाव से लें कि हम प्योरीफाई हो जाएं, हम सही हो जाएं ऑन ऑल लेवल्स। ठीक है, हर लेवल पे, चाहे फाइनेंशियल लेवल हो, चाहे इमोशनल लेवल हो, चाहे फिजिकल लेवल हो, पर ये हमारी दवाई है। तो हमने बात नहीं करनी है, ये मेरा टाइम है मेरे लंगर के साथ। और ये लंगर तभी असर होता है
जब आप उस भाव से खाते हो, कहते हैं ना जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, तो अगर ये मेरे लिए खाना है तो ये खाना ही बन जाएगा। अगर मैं उस लंगर को दवाई के भाव से खा रही हूँ तो वो दवाई है और लगती है। तो मैं बड़े मंदिर अकेली चली गई, मैंने लंगर किया अकेले में और निकल आई। और फिर मैं जाती रही, जब भी चांस मिला कहीं भी, चाहे सत्संग हो चाहे बड़े मंदिर छोटे मंदिर, मुझे लंगर से मतलब था। गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए थी मुझे, क्योंकि मैं बहुत डिटर्मिन्ड थी कि मैंने जीना है। लेकिन मेरी बॉडी टूटती जा रही थी। ऑटोइम्यून डिजीज, अगर आपको पता है नहीं पता, पर अंदर का बोल दिया था उन्होंने कि आपकी ये स्किन की, तो स्किन सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, आपके अंदर की जो ऑर्गन्स है वो खराब हो रहे हैं। बहुत स्कैरी टाइम था। एंड क्या हुआ, 2 वीक्स लेटर मेरा छोटा भाई बहुत जाता है गुरुजी के पास, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड प्योर सोल है वो। एंड उसने कहा कि वापस चलते हैं डॉक्टर के पास। अब दूसरे डॉक्टर के पास ले जाते हैं रिपोर्ट और एक नया टेस्ट कराते हैं। नेचुरली वी ऑल नीड अ सेकंड ओपिनियन। और तब तक मैं काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी कि अब जो होगा ठीक है, देखा जाएगा। अब मैंने लंगर कर लिया और लंगर करते करते सत्संग सुनते वाक्या सुन के मैं स्ट्रांग हो गई थी, पॉजिटिव हो गई थी कि अब गुरुजी की मर्जी। अब मैंने सरेंडर कर दिया था, अब गुरुजी की मर्जी। पर अंदर से तो था कि क्या मैं अपने बच्चों की शादियां नहीं देखूंगी, तो अंदर से था। लेकिन मैंने कहा शायद मेरा टाइम यही है। आ गया कि सफ़र भी बहुत कर रही थी। ये 2016 की बात है जैसे। अब जब डॉक्टर ने टेस्ट किए और रिपोर्ट्स उन्होंने कंपेयर की, तो उन्होंने कहा आपकी फर्स्ट रिपोर्ट तो 100% ऑटोइम्यून डिजीज़ है एंड सचमुच 50-50 चांस था। और जो सेकंड रिपोर्ट है वो कुछ दिखा नहीं रही ऐसा, वो ऐसा कुछ थी आपकी लो इम्यूनिटी है। इंडिया में तो खासकर दिल्ली में, बिकॉज पोल्यूशन इतना है कि ये सिर्फ लो इम्यूनिटी है। मोस्ट पीपल हैव लो इम्यूनिटी इन दिल्ली, सो इट्स नथिंग। सो अगेन लाइक गुरुजी सेड, एंड ये गुरुजी ने मे बी सबको नहीं बोला हुआ, पर गुरुजी ने ये मुझे बोला कि 90% तुहाडे कर्म मैं अपने ते ले लाना और 10% लाइक अ prick of a needle as opposed to a blade of a sword, I let you go through your karmas। उसमें भी अपना रस है, बिकॉज अगर हम 100% गुरुजी ठीक कर देंगे, हम एरोगेंट हो जाएंगे, हम सोचेंगे अब तो हमें रब की ज़रूरत ही नहीं है, हम हम्बल नहीं रहेंगे, हम एक्चुअली मे बी डिस्कनेक्ट होते। तो थोड़ा सा दुख हमेशा अच्छा ही होता है, वो मीठा दुख जो होता है ना, वो हमें, क्योंकि देन वी स्ट्राइव फॉर इवन बेटर। हम कहते हैं चलो ये भी एक चैलेंज है, ये भी, और भी हमें इसका मतलब हमें अपने पे काम करना, अपने कर्मों में वी हैव टू वर्क। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो वो 10% जो था रैशेज रह गई थी। एंड फिर मैं आयुर्वेद डॉक्टर के पास जब गई तो उसने कहा कि आप प्राणायाम शुरू करो ना। दोनों मेरी बेटियां योगी है, योगा टीचर्स हैं दोनों ही, तो वो तो रोज़ प्राणायाम करती हैं। एंड मेरे दोनों बच्चों ने बोला कि मम्मी आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको प्राणायाम सिखाएगा। और उससे वो भी गुरुजी बेचते हैं, बिकॉज स्टेरॉइड्स लेने से अच्छा है कि आप नेचुरल थेरेपीज यूज़ करो। तो मैं देखते देखते नॉर्मल हो गई। लास्ट ईयर फिर हो गया ऑटोइम्यून डिजीज। लास्ट ईयर मीन्स अभी 2019 में, एंड हो गया फिर से, मतलब इट जस्ट रीसर्फिस्ड बिकॉज ऑटोइम्यून डिजीज डजंट रियली गो एनीवेयर, यू हैव टू मैनेज इट। सो मे बी मेरी मिसमैनेजमेंट हो गई थी, एंड अगेन माई स्किन वॉज covered and I had blood on my shins, and I thought, oh my god, how many times am I going to battle this? पर फिर लंगर के थ्रू ठीक हो गई। सो इट्स अ जर्नी, there's no destination here. The destination is only him, his love. Problems life में रहेंगी पर वो reduce कर देते हैं। And faith does not move mountains, but it gives you the strength to climb that mountain. So everyone has a mountain in their lives. Mountain of karmas which we have accumulated over many lifetimes, many incarnations. ये इस जन्म की सिर्फ कहानी नहीं है, लेकिन इस जन्म में मैं लेके आई थी काफ़ी कुछ। I got a hole in the heart. I had asthma, eczema. So मैं लेके आई थी पिछले संस्कारों से लेकिन मेरे संस्कार बहुत अच्छे थे कि मैं गुरुजी से जुड़ गई। एक दिन मैं बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी, मेरी फैमिली में से कोई नहीं आता और मेरा मजाक उड़ाते हैं कि शाम को जाती है किसी गुरु के पास और रात को आती है वापस, पता नहीं भटक गई है, इंग्लैंड से है और ये लॉस्ट सोल है। लेकिन अंदर से मुझे पता था मैं लॉस्ट नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसा मिला है मुझे। आई हैव फाउंड समथिंग
सो ब्यूटिफुल, सो इनएक्सप्लिकेबल, बिकॉज गुरु जी का सत्संग भी हम करने के लायक नहीं है। बिकॉज जब हमें वो प्यार मिलता है, वो प्यार को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम पोएम लिख लेंगे गुरु जी पे बुक लिख लेंगे, सत्संग शेयर कर लेंगे, सत्संग कंपाइल कर लेंगे, पर वो जो एसेंस है ना, दैट इज एक्सपीरियंशियल, इट कैन नॉट बी theoretically explained। जैसे कहते हैं ना, हम आम भी खाते हैं, इतना मीठा होता है, हम क्या बोले, आम मीठा था, आम मीठा था, but it's not accurate, it can never be, we can never accurately, precisely explain the love we feel for Guruji। ये अपना अपना एक सोल टू सोल कनेक्शन है बस। सो मैं क्या कह रही थी, आई फॉरगॉटन, आई गॉन ब्लैंक। मैं भूल गई हूँ क्या कह रही थी मैं, मे भी नहीं सुनाना था वो। ओके, सो ये शुक्राना करते रहो, बिकॉज हम भूल जाते हैं, हम शिकायत ज़्यादा करते हैं, इट्स ह्यूमन नेचर। शिकायत करने लग जाएंगे कि इसके बाद क्या होगा, ये क्यों हो गया। पर आप देखो कि कितना ब्यूटीफुल टाइम है, हम सबको पता ही है कि हम हम कितना ब्यूटीफुल टाइम कि हम फैमिली के साथ दोबारा रिकनेक्ट हो गए हैं। एंड yeah, so yoga basically, when I did the pranayam, हाँ, जो फैमिली नहीं मानती थी, राइट। सो मैंने रोई गुरुजी के सामने, एंड बहुत रोई। आई मीन आई रियली लाइक, आई वाज क्राइंग लिटरली, आई वाजंट जस्ट कंप्लेनिंग टू हिम, आई वाज क्राइंग। आई सेड गुरुजी मेरा मजाक उड़ाया जाता है फैमिली में, और वो कहते हैं पता नहीं कितने भटक गई है। तो क्या हुआ कि गुरुजी स्माइल्ड, जैसे वो स्माइल करते थे इन अ वेरी बिनाइन, बड़ी नम्रता के साथ। कहते अच्छा, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मेरी फैमिली बुलाती भी नहीं है अब डिनर्स पे। वो कहते ये तो बिल्कुल ही लूज कैनन है। तो कहते अच्छा फिर अदा की हल है। तो मैंने कहा मुझे क्या पता गुरुजी, आप बताओ। एंड आई वाज क्राइंग, आई सेड मुझे नहीं पता गुरुजी, आप बताओ। तो कहते हैं फिर अदा हल एक ही है कि मैं एक एक बंदे ਨੂੰ बुला लांगा तेरी फैमिली तो देखी तू हैरान होंदी जाएंगे, एक एक बंदा आएगा तेरी फैमिली तो। एंड वही हुआ, देखते देखते, स्पेशली गुरुजी के चोले, जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, ह्यूमन फॉर्म जब छोड़ दिया था, क्योंकि गुरुजी तो कहीं नहीं गए थे। गुरुजी ने कहा था मैं उत्ते जाके तारांगा, मेरी संगत बहुत वध जानी है, और नाल वाली संगत दिखी किन्ना मैनू प्यार करेगी, और सीधा रब मन लांगी, तुसी गुरु गुरु करते रहोगे। विच इज़ ट्रू। ऑल यू गाइज हु हैव नॉट मेट गुरुजी, you are connecting to the divine energy, and maybe, I mean not now, but maybe once he left, I think we were connected to his divine form. And Guruji always said मैं तो formless हाँ, मेरे form नाल ना connect हो, मैं किसी form में भी आ सकना। So the idea is to connect to the energy, to the नाम। तभी कहते हैं ना नाम मांग लो, और नाम आप कुछ भी आप बोलो, चाहे शिव जी बोलो, चाहे राम राम बोलो, नाम तो द लैम्प्स ऑफ मैनी, द लाइट इज वन, जो तो एक ही है। तो आप कुछ भी बोलो, बस बोलो। कुछ कहते हैं सब कुछ करो पर ऐ भी करो, सब कुछ करो दुनिया दी गल्ला, अपने डिज़ायर्स भी रखो, अपने जो भी है, आपके एम्बिशंस है, आपकी जो डेली रूटीन है, लेकिन आप ये भी करो। हम क्या करने लगे थे, दुनिया की बातों में ज़्यादा थे, और नाम लेने का टाइम ही नहीं था। अब नाम लेने का टाइम आ गया, और नाम से जुड़ने का टाइम आ गया, और नाम मांगने का टाइम आ गया। असली चीज़ मांग लो, क्योंकि गुरु जी कहते सी सब कुछ नहीं था इत्थे ही रह जाना है, सिर्फ नाम की कमाई नाल जानी है, और वो कोई मंगदा ही नहीं है, और ना ही कोई टाइम निकालता है वो करन वास्ते। तो इसीलिए आप असली चीज़ मांग लो, और आप फिर वो रस देखो आपकी लाइफ में कितना फ्लो करता है। आपका फ्लो करेगा इंटरनली एक्सटर्नली। जो इंटरनल ग्लो होगी वो अपने आप एक्सटर्नली ग्लो आएगा आपकी लाइफ के अंदर। और आप बस करते रहो, और हर वेला अमृत वेला, आप चाहे अमृत वेला करो, जब जागो तभी सवेरा। आप बस नाम तो लो, बाकी तो उन्होंने टेक ओवर करना है। टेक वन स्टेप टुवर्ड्स हिम, ही विल टेक 1,000 टुवर्ड्स यू। गुरुजी मतलब सिर्फ प्यार मांगते हैं हमसे, कहते से कोई प्यार नहीं दिंदा, सिर्फ मंगते रहते हैं। तो आप
आप प्यार कर लो गुरुजी को, बस आप उनको बेस्ट फ्रेंड मानो, फादर फिगर मानो, मदर फिगर मांगो, चलते फिरते बात करो उनसे, जस्ट लव हिम। गुड मॉर्निंग गुरुजी, कैसे हो गुरुजी? अगर पेंटिंग कर रहे हो तो गुरुजी आप बनाना है, राइटिंग करो आपने बना लिखना है गुरुजी। तो जस्ट इनकॉर्पोरेट हिम। हर चीज़ जो, अगर भगवान का नाम लेके आप कोई भी काम करते हो तो वो काम ने सक्सेसफुल होना ही होना है। अपना दिमाग नहीं लगाओ। यही तो कहते थे, अपनी बुद्धि मेरे चरणों पे चढ़ दो, अपनी मत चरणों में छोड़ो और उनकी मत ले लो। थिंक हायर, हैव अ गुड विजन नाउ। आप अच्छी चीज़ मांग लो और अच्छा बनो। ये टाइम आ गया है अच्छा बनने का, अच्छा सोचने का, अच्छा करने का। वो जो ABC है जो गुरु जी कहते से, अक्यूज, ब्लेम, क्रिटिसाइज, वो छोड़ दो, जज करना छोड़ दो। हम कौन होते हैं, हमने पता नहीं किसकी अगले की क्या जर्नी रही है, क्या जर्नी है, क्या तकलीफ़ें हैं उसको। इसलिए कभी जज ना करो किसी को, अपने आप को बस देखो, अपनी फोकस रखो, आपका और गुरुजी का कनेक्शन, सोल टू सोल। बस यही सच्चाई है एक, और सबकी अलग अलग सच्चाई है, डायरेक्शन एक है, रूट्स अलग है, पर आप अपना फोकस कीजिए। बिकॉज पता नहीं कब ये सांस खत्म हो जाए, पर अभी जब तक है श्वासा न सिमरा तेरा नाम, बस यही एक फोकस होनी चाहिए। बाकी आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। when you keep the face, so when you keep your face towards the sun, when the shadows move behind, then your problems will also move behind ना, वो तो obvious है। so चाहे लॉजिक नहीं है इसमें कोई गुरुजी के realm में, पर फिर भी सब कुछ रीजनेबल है, सब कुछ मेक सेंस। वंस यू आस्क फॉर द रियल डील, जब नाम मांग लेते हो तो एवरीथिंग एल्स गेट्स अलाइंड। जो जो नीचे है वो सब अलाइंड हो जाता है, जो नई ज़रूरत वो सब हट जाता है। द इन एसेंशियल्स यू विल लूज ऑटोमेटिकली। रॉन्ग संगत, रॉन्ग फ्रेंड्स, रॉन्ग कंपनी, वो सब गुरुजी हटा देते हैं। वो क्लेंजिंग होती है, स्प्रिंग क्लीनिंग ऑफ योर लाइफ। वो स्प्रिंग क्लीनिंग कर रहे हैं अभी भी हमारे, पहले अंदर और बाहर। सो आप बस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। सो गुड सीड्स, जो जो बीजोगे वही फलेगा। सो जय गुरु जी। थैंक यू अगेन, थैंक यू संगत, थैंक यू गुरु जी फॉर गिविंग मी दिस सेवा। एक ही सेवा मुझे दी गई है और एक ही चीज़ मुझे आती भी है, मुझे सिर्फ सत्संग ही करना आता है, क्योंकि गुरु जी ने ब्लेस किया। मुझे याद है जब पहली बार कराया था, जब मेरा अस्थमा ठीक हो गया था, कहते खड़े होके सुना। मैं एकदम नर्वस हो गई, मैं क्या खड़े होके क्या सुनाऊँ, कैसे सुनाऊँ? तो मैं खड़ी हो गई और आई रिमेंबर मेरे लेग्स शेक करने लग गई, मैं नर्वस हो गई, मुझे एकदम सारा पसीना पसीना हो गया और मैंने बस खड़े होके कहा जय गुरु जी, मुझे अस्थमा गुरु जी ने ठीक कर दिया, और मैं बैठ गई। तो गुरु जी कहा कमली है, तेनू तो सत्संग भी नहीं सुनाना आंदा। और जब जा रहे थे गुरु जी 2007 में, तो गुरु जी कहते तेरी सेवा सत्संग सुनाना। तो मैं कहा लेकिन गुरु जी आपने तो बोला है मुझे सुनाना नहीं आता, हुण मैं सुनावांगा। तो सुनन वाला और सुनन वाला और सुनान वाला दोनों की महर होंदी है। तू सत्संग थोड़ा ना करना है और वापस जा इंग्लैंड जाके सत्संग शुरू कर। गुरु जी मैं कैसे शुरू करूँगी मैनचेस्टर में सत्संग? कहते तू थोड़ा शुरू करना है, शुरू तो मैं करना है, तू जा उत्थे। So we are not the doers, he is the doer. So leave it all to him. When you leave it all to him, you get it all. So he's a divine mathematician, and हम precision के साथ, accuracy के साथ और उनके टाइम के साथ, उनके कैलेंडर के साथ से हम सब कुछ मिलता है जो हमारे लिए सही है। सो आप पेशेंस रखिए, परसिवियर कीजिए। और ये जो टाइम है ना लॉकडाउन का, ये समझिए कि हमारे तो लॉक्स बहुत खोल दिए गुरुजी ने, हमारे अंदर के लॉक्स बहुत खोल दिए गुरुजी ने। तो आप उसका शुक्राना करो, शिकायत नहीं कीजिए, शुक्राना कीजिए। और जितना शुक्राना करेंगे उतनी आपकी लाइफ मैग्नीफाई होगी, उतनी ही आप पॉजिटिव होते जाओगे और उतनी मेहर होती जाएगी आपके अंदर। तो जय गुरु जी। थैंक यू, शुक्राना। और कोई सत्संग है सुना तो मैं सुना देती हूँ, नहीं तो काफ़ी मैंने सुना दिया। आई थिंक कभी इनफ नहीं होता, ये तो रस चलता रहता है और जितना हम बोलते रहते हैं आई थिंक आप सुनने वाले को भी रस मिलता है, बोलने वाले को भी रस मिलता है। ये गुरुजी क्योंकि सुना रहे हैं तो ये कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। ये गुरुजी टेक्स ओवर एंड जो सुनवाना होता है वो ही सुनवाते रहते हैं। यस, आई एम इन दुबई।
के सत्संग सुनती हूँ। तो मैं दिल्ली में थी एंड फरवरी में मैं कभी दिल्ली नहीं छोड़ा बिकॉज द वेदर इज़ नाइस। नॉर्मली मैं दिल्ली छोड़ती हूँ मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मई में, क्योंकि गर्मी हो जाती है, तो मैं मई में निकलती हूँ और मैं फिर जुलाई अगस्त में वापस आती हूँ। तो मेरा ये रूटीन है एंड बाकी 10 दिन के लिए इधर उधर जहाँ सत्संग हो रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने सेवा दी है, तो कभी कहीं you know I do go and I love it. I love meeting different संगत and I love sharing. So मैं जाती रहती हूँ, दुबई भी आती रहती हूँ। सो फरवरी में बहुत कुछ हो रहा था दिल्ली में, बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि शिवरात्रि भी थी, महाशिवरात्रि, तो कई फंक्शंस भी हो रहे थे सत्संग संगत के थ्रू। बहुत सत्संग हो रहे थे, बड़े अच्छे सत्संग हो रहे थे एंड मज़ा आ रहा था। अपने आनंद में थे हम। लेकिन पता नहीं क्या थॉट आई, गुरुजी ने डाली, ऑफ कोर्स आई थिंक सबके लिए, मतलब सब फैमिलीज इकट्ठी हो गई अब। तो मेरी बड़ी बेटी दुबई रहती है और छोटी बेटी बाली जा रही थी कोई और एडवांस कोर्स करने के लिए योगा में। दोनों योगा टीचर्स हैं एंड तो छोटी वाली बोली मम्मी आप मिलाओ अनिष्का को दुबई, पर उसके बाद आप बाली आ जाना। तो देखो, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। भगवान के प्लान्स अलग होते हैं और हमारे प्लान्स टेम्परी होते हैं, और हमेशा वही प्लान चलते हैं, जो होता तो वही है जो मंजूरी खुदा होता है। तो मैं पहले बॉम्बे चली गई एक हफ्ता। वहाँ गुनीत मोंगा है, वो जो प्रोड्यूसर है, उसने कहा आपने आना है अनीता और आपने मेरे साथ रहना है। शी इज़ मेड मी हर गॉड मदर, सो हम बहुत क्लोज हैं। एंड शी सेड यू कमिंग। आई से ठीक है मैं आ रही हूँ एंड आई वाज वेरी हैप्पी। कहती मैं सत्संग करूँगी। करण आनंद भी था और उसने कहा मैं भी सत्संग करूँगा, तो आप आ जाओ हमारे यहाँ बॉम्बे में। एंड बॉम्बे की संगत बहुत सिंपल है एंड बहुत गुरुजी को प्यार करती है दिल से। बहुत यंग संगत है, यू नो दीज प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स दे वेरी यंग and but their connect is not about flamboyant दरबार्स, flamboyant clothing, flamboyant कुछ नहीं, सिंप्लिसिटी में सत्संग करते हैं, इसलिए बहुत मज़ा आता है। आप एक्चुअली गुरुजी से कनेक्ट होते हो। तो वो हफ्ता बीत गया बड़ा अच्छा। थोड़ा बहुत फरवरी एंड तक आवाज़ आ रही कि चाइना में ये हो रहा है एंड यू नो काफ़ी फैलता जा रहा था, इटली में फैलता जा रहा है, पर इंडिया काफ़ी सेफ था, दुबई में भी सुना नहीं था कुछ। तो आई कैरीड ऑन विथ माई प्लान्स। 4 मार्च मैं यहाँ आ गई दुबई एंड आगे अनिष्का को मिलने। मैं सोचा हुआ था दिमाग में कि 10 दिन रहूँगी और फिर बाली चले जाऊँगी छोटी बेटी के पास। पर वही हुआ, जैसे आई हफ्ता के बाद वो अनाउंस हो गया लॉकडाउन। और लॉकडाउन होने वाला था जब सोनाक्षी बोली मम्मी आपने नहीं आना बाली, इनफैक्ट यहाँ भी केसेस हो रहे हैं, तो मैं आ रही हूँ दुबई, आप बैठे रहो वहीं पे। वो आ गई और देखो गुरुजी ने कैसे प्लान किया कि हम तीनों यहाँ आ गए और तीनों इकट्ठे मुझे मौका दे दिया दोबारा एक मदर का रोल प्ले करने के लिए। बच्चे ऑफ कोर्स बड़े हो गए हैं, 29 एंड 28, वो इंडिपेंडेंट है, पर आई स्टिल गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले मदर एंड आई एम कुकिंग फॉर देम नाउ, आई एम पेंटिंग विद देम, डूइंग योगा विद देम, आई एम राइटिंग एज यू ऑल नो नेक्स्ट बुक डिवाइन लाइट के बाद अब डिवाइन ग्रेस लिख रही हूँ, ख़त्म हो गई आज। एंड गुरुजी लिखवाते हैं, मैं कौन होती हूँ लिखने वाले, लोगों ने सत्संग दिए हैं, जैसे डिवाइन लाइट थी आपको पता ही है। तो ऐसे गुरुजी बिजी रखते हैं, एक पर्पस दे देते हैं लाइफ का। गुरुजी ने इतनी सुंदर बना देते हैं लाइफ को कि आपको कोई किसी चीज़ का घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पूछते भी हो ना कि मेरा क्या लाइफ का पर्पस है, तो गुरुजी वो भी रिवील कर देते हैं, वो आपको दे देते हैं। एंड आई थिंक एवरीवन्स लाइफ हैज़ बीन रीडिफाइंड एंड यू नो आई रियली फील I don't have a local number, but yeah, you can just you know, I don't know, I can't, I'm sharing my satsang right now, I don't know how to share it with you. You can maybe message me later. So otherwise I'll get distracted. So Guruji ने प्लान किया हुआ है हर बंदे के लिए, you know, एक like you know everything is pre-written, let's put it this way, everything is pre-written before we come to Guruji. But after we connect and we really fall in love with Guruji, then everything is rewritten. मुझे कहते थे जब मेरा स्किन कैंसर ठीक किया कि मैं तेरे स्टार्स बदलते हैं, मैं तेरू नवी जिंदगी देती है। एंड दिस वॉज प्रोवन बिकॉज मैं एस्ट्रोलॉजी के पास गई थी 1 साल पहले गुरुजी को मिलने, और उसने क्लियरली पत्री दे के बोला आपकी तो कोई ज़िंदगी नहीं है। तो गुरुजी ने सचमुच मुझे नई ज़िंदगी दी। डिवाइन लाइट अब अवेलेबल है फॉर मैनी लॉन्ग टाइम नाउ। You can just go on
what's that place, वैसे तो it's everywhere online, you can read it PDF version. थैंक यू सो मच. PDF वर्जन है डिवाइन लाइट का. आप इनको पूछ लीजिए, अतुल जी को, अतुल कुमार जी को, किसी से भी पूछ लीजिए. इट्स अवेलेबल एवरीवेयर. juggernaut.com करेंगे, सॉरी juggernaut.in को करेंगे तो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फॉर फ्री, दिस डिवाइन लाइट. इट्स सेवा, प्योर सेवा. So Juggernaut, don't ask me the spelling, but juggernaut.in, and you go on it, divine light आ जाएगी आपको. And I think वो भी आ जाएगी, turning the page, जो पहली बुक है. जैसे मैं गुरुजी को फर्स्ट मिली, कैसे मिली, कितने अंधेरे में थी, गुरुजी रोशनी में ले आए. सबके साथ यही करते हैं. So गुरुजी ब्लेस करेंगे. एक चीज़ है जो मुझे क्लैरिफाई करनी है आप सबसे, इसलिए फ़ोन नंबर भी नहीं शेयर किए जाते ज़्यादा. नॉट बिकॉज वी आर एरोगेंट और इग्नोरेंट, बिकॉज हम कुछ कर नहीं सकते किसी के लिए. मैंने एक दिन बोला कि गुरुजी नहीं, एक दिन गुरुजी ने मुझे डांटा, और बहुत डांटा. कहते कि तू ना किसी दी लंबी लंबी गल्ला बड़ा सुननी है फ़ोन ते. अब नहीं सुनती मैं बिल्कुल भी. कहते तेनू असर होंदा है. उन्होंने कहा गुरु को लाए, गुरु दा ना डायरेक्ट कनेक्ट, क्योंकि हम अपना सत्संग सुनाते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, पुरानी नई संगत, कोई नवा नहीं कोई पुराना नहीं, एज वी नो हम सब संगत है, और सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सबका अपना अपना कनेक्शन है. तो हम कोई नहीं होते किसी को ब्लेस करने वाले या किसी को राह दिखाने वाले. हम तो सिर्फ अपना सत्संग सुना सकते हैं और वो बातें कर सकते हैं जो गुरुजी ने हमें सिखाई हुई है कि तुसी जुड़िया करो, वाक्या सुनो, शब्द सुनो, जिहदे अंदर वाक्य होंदा है, उहदे नाल बड़े आंसर्स मिलते हैं. तो कोई शॉर्टकट्स नहीं है इसमें, कोई शॉर्टकट्स नहीं. अगर हम सोचे कि आप हमें रेमेडी दे दो, रेमेडी तो एक ही है ना. इट कम्स बैक टू दैट कि आप बैठो. ये तो अकेले आए थे अकेले जाएंगे, तो अकेले ही कनेक्ट करने की कोशिश करो. समटाइम्स अकेले बैठने में, अपने कमरे में बड़ा आनंद मिलता है कि आप अकेले में आप बैठे हो, दिया जला दिया गुरुजी के सामने और बस अपना शब्द चला लिया पीछे, और वो जो आनंद मिलता है ना अकेले में, क्योंकि कोई आपको नहीं देख रहा, आप किसी को नहीं देख रहे, गुप्त पाठ हो रहा है. वैसे तो गुप्त ही कहते थे ना गुरुजी, हर चीज़ में कहते थे गुप्त पाठ, गुप्त सेवा, गुप्त दान करो. पर वो अब सब कुछ दिखावे पे हो गया है. कि मैं कर रही हूँ, माला फेर रही हूँ, मैं कर रही हूँ सत्संग, मैं पहले ही आ जाती है. तो हम जब सत्संग सुनाते हैं, अपने गुरु की मेहर सुना रहे हैं, तो हम कोई नहीं होते किसी को ब्लेस करने वाले. इसलिए फ़ोन नंबर्स भी गुरुजी डिस्करेज ही करते थे कि ज़्यादा नंबर नहीं एक्सचेंज करे दे, कि ज़्यादा सुनेदा नहीं, बिकॉज हम कोई नहीं है. जैसे आप वैसे मैं, जैसे मैं वैसे आप, हम एक ही हैं. तो इसमें कोई वो नहीं है कि कोई सुपेरियर है, कोई ज़्यादा ब्लेस्ड है. और कभी किसी की जर्नी के साथ कभी कंपेयर भी नहीं किया जाता. क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि सबकी अलग अलग जर्नी है, और कोई ज़्यादा ब्लेस्ड नहीं, कोई कम. मैं कहती हूँ सभी ब्लेस्ड हैं अपने कैपेसिटी में. सबको गुरुजी ब्लेस करते हैं. तो ये सिर्फ एक टाइम होता है जो आपको इसलिए पेशेंस रखना है क्योंकि गुरुजी को पता है आपकी टाइमिंग कब आपको ब्लेस करना है, और ब्लेस तो कर ही रहे हैं. यही एक तरीका है सत्संग सुनने का, करने का. शब्द सुनो, अपना लंगर भी गुरुजी से अब घर में ही बनाओ. लाइक व्हाटएवर यू ईटिंग, आई वुड से, अगर आप इफ यू हैविंग अ कप ऑफ टी, आई लव माई कप ऑफ टीज which I know my Manchester friends also do. So just make that tea and put that intent in it कि ये मेरा प्रसाद है, गुरुजी प्लीज़ ब्लेस कर दीजिए, and thank you for this tea. कई लोग हैं इतना सफ़र कर रहे हैं बाहर, जिनको चाय तक नहीं नसीब हो रही. तो हमेशा अपने नीचे से देखो, अपने नीचे वालों को देखो, आप रियलाइज़ करोगे कि आप कितने ब्लेस्ड हो. हर चीज़ में आपको ये ज्ञान दिया गया है कि हर चीज़ में गुरुजी हैं. अगर हम चाय पी रहे हैं, वो चाय नहीं, वो चाय प्रसाद है. अगर दिन का आज जैसे खिचड़ी बनी घर में, तो खिचड़ी भी मैंने जब देखा खिचड़ी को, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, ब्लेस कर दीजिए. सो बिफोर यू टेक दैट फर्स्ट बाइट, ऑफर इट टू गॉड. यू डोंट हैव टू गो थ्रू द रिचुअल ऑफ हमेशा भोग लगाना. यू कैन जस्ट, सामने आ गया खाना, तो आप वो खाने को अपने भाव से, अपने इंटेंशन से उसको लंगर बना दो. वो अपने आप दवाई बन गई. जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि. You will get what you're looking for. Whatever you look for, you will find. Seek and you shall find. So you will find whatever you're seeking, right? So आप सोचो कि आप जो करते हो, सुबह उठते हो, गुरुजी कहते तुसी
लिपस्टिक भी लगाती हैं ना लेडीज मिरर में, तो मैं ना खड़े हो के मैनू दिखना चाहिए। आई मीन आई एम नॉट बीइंग एबल टू से कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ लेडीज़ ਨੂੰ लगे कि गुरु ना खड़ा है। तो गुरु जी हर चीज़ में अगर आप गुरु जी को ले आओगे इन योर एवरी एक्टिविटी, इन योर एवरी थॉट, तो वो प्योरिफिकेशन अपने आप होती जाएगी और अपने आप आपको पीस होता जाएगा। और जब पीस हो जाता है तो अपने आप वो बीमारियाँ जो हमारे अंदर है वो अपने आप ख़त्म होती हैं। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम फैक्ट। अब योर वर्ड्स, योर रियलिटी फॉलोज योर वर्ड्स। अगर वो कहो आप बार बार कि मैं बीमार हूँ, मुझे ऑटोइम्यून डिजीज, अब मैं बोलती भी नहीं हूँ, मैं कभी नहीं बोला कि मुझे ऑटोइम्यून है या मुझे अस्थमा। सत्संग सुनाती हूँ लेकिन कभी नहीं बोलती। वाई? क्योंकि मेरी मम्मी बोलती होती थी और गुरुजी भी बोलते थे कि वो सरस्वती चल रही होती है और आप जैसे बोलोगे वैसे आपकी रियलिटी हो जाती है। तो कभी ना बोलो कि मैं बीमार रहती हूँ, आप बोलो मैं सही हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव स्पीकिंग, तो हर चीज़ में पॉजिटिव लेके आओ। तो कभी ना कहो मैं बीमार रहती हूँ, मैं सही सलामत हूँ। मैं शुक्र करती हूँ कि मैं यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि मेरी तो कोई लाइफ नहीं थी। आज गुरुजी हैज सेड इन द पत्री दिसंबर 97 के बाद, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं यहाँ बैठी हूँ, सांस ले रही हूँ। बीइंग एन एस्थमेटिक, बीइंग व्हाट, कि अब अस्थमा भी नहीं है, सांस ले रही हूँ और शेयर कर रही हूँ। और मौका दिया जा रहा है मुझे, भगवान ने मौका दिया है कि अपनी सेवा कर। और कितनी अच्छी सेवा है, मैं कितना इन्जॉय करती हूँ ये सेवा करते करते पता नहीं कितना रस आता है। ये इतना रस आता है कि ये असली रस है लाइफ का। क्योंकि गुरुजी यूज्ड टू से हर चीज़ विच रस है नीता दुनिया दी गल्लां च। शॉपिंग विच भी रस है। आप तो ऑनलाइन शॉपिंग सब कर रहे हैं, उसमें भी रस है कि हाय मैं नई शूज़ खरीद रही हूँ, चाहे आप किसी को दिखा नहीं सकते, बस ज़रूरतें तो है ना, तो वो भी कर रहे हैं आप। तो हर वो भी है, ऑनलाइन शॉपिंग में भी रस है। फ्रेंड्स के साथ बैठना और कॉफ़ी पीना, उसमें भी रस है, अलग रस है। उनको फ़ोन करना और बातें करना लंबी लंबी, अलग रस है। तो हर चीज़ में रस है, पर जो ये रस है ना वो हमारे साथ जाएगा। बाकी एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, दिस इज़ परमानेंट एंड इज़ प्रॉब्ली इमोर्टल। दिस इमोर्टलाइजेज द ह्यूमन लाइफ। भगवान के साथ, भगवान को पाना और भगवान, जैसे अगर हम भगवान को पूछते हैं तो दुनिया हमें पूछती है, ये सच्ची बात है। अगर हम भगवान को पूछते हैं तो दुनिया हमें पूछती है। हमें नहीं तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। गुरुजी ने मुझे ये कहा था, ये वर्ड्स हैं उनके, कि तेनू तो कोई नहीं पूछता, हुण मैं पूछांगा, हुण देखी तेनू कितना प्यार और इज्जत मिलेगी। वो गुरु की दी हुई प्यार और इज्जत है। इसलिए हमें हमेशा ह्यूमिलिटी में रहना है, क्योंकि वो मेरा नहीं है, मेरी कमाई नहीं है, वो गुरु जी की दी हुई है। वो एक प्यार गुरु जी का है, वरदान है उनका। कि अगर लोग कहें अनीता आंटी, वो अनीता आंटी प्यार से क्यों बोलते हैं, वो गुरु जी ने दिया है। तो इसीलिए कहते हैं आप गुरु की महिमा गाओ, इंसान की महिमा ना गाओ। इंसान क्या है, मिट्टी के तो बने हुए हैं हम, एक दिन चला जाना है। तो हम क्या हैं सच में, हम कुछ नहीं हैं। और गुरु की मेहर के बिना तो हम सचमुच कुछ नहीं है, हम नल एंड वॉइड है, कुछ नहीं है हम। आज यहाँ है, here today gone tomorrow। सो इसलिए आप गुरु जी की पूछो, उनको पूजो, गुरु को मानो और गुरु की भी मानो। वो टाइम आ गया गुरु का हुक्म में रहने के लिए और गुरु जी को मानने के लिए और की मानने के लिए। गुरु जी जब कहते थे किसी का दिल ना दुखाओ, आप सोचो बोलने से पहले, क्योंकि हम अब सब फैमिली में कन्फाइंड स्पेस में हैं तो हो जाता है, कभी तू मैम हो जाती है, कभी आप जुबान को देखते नहीं हो, आप कुछ बोल देते हो गलत अपने बच्चों को या मेड को या सर्वेंट को, ड्राइवर को, स्पाउस को। लेकिन वी आर सोइंग द सीड एट दैट पॉइंट। सो बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू से एंड व्हाट यू थिंक। जस्ट इट्स बेटर टू रिफ्रेन। सीड्स नहीं सो करनी, अब नेगेटिव सीड्स नहीं सो करनी, आप सिर्फ पॉजिटिव सीड्स सो करनी है, क्योंकि वो फिर गुरुजी फटाफट उनको स्प्राउट करेंगे। और हम जो युग में आ रहे हैं अब, वो बहुत सुंदर युग है। दिस इज ऑल क्लेंजिंग हैपनिंग, नेचर क्लेंजिंग, गुरुजी क्लेंजिंग। हम गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, हम अपनी तो क्लेंजिंग करें। वी मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी for the teachings that Guruji has imbibed in us. So we must now apply them. हमने स्कूल में चले गए, सत्संग बैठ गए, हमें बोला गया कि अच्छा इंसान बनो, अपने कर्म का खेल है, पर हमने क्या पाया, क्या लेके आए वापस सत्संग से, बड़े मंदिर से, छोटे मंदिर से। लेकिन now is the time to revise.
to relearn, to imbibe, to get it into the subconscious head, ताकि हम जब निकले हम सतयुग में निकले. हम जब दरवाजे हमारे दोबारा खोले, अंदर के भी बाहर के भी, तो हम पूरी दुनिया बदली हुई, अच्छी दुनिया है, भगवान की दुनिया है, गुरु जी की दुनिया है. बिकॉज नाउ वी नीड टू प्रे कि सब कनेक्ट हो जाए गुरु जी से. जिनकी बुद्धि भ्रष्ट भी हुई है उनकी बुद्धि भी अच्छी हो जाए. और गुरु जी आपका प्यार पूरी दुनिया में, पूरी दृष्टि में आपका नाम ही हो, सिर्फ आपका नाम. और हर संगत एक दूसरे को सच्चे दिल से प्यार करे, क्योंकि वो हम फैमिली हैं, एक गुरु परिवार. जैसे गुरु जी ने कहा था ना, मैं गुरु परिवार छड़ के जा रहे हैं, असली फैमिली यही है. तो ये फैमिली में कंपैरिजंस नहीं होनी चाहिए, जजमेंट नहीं होनी चाहिए, शिकायत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ शुक्राना होना चाहिए. बिकॉज वही एक वर्ड है, इतना बड़ा वर्ड है शुक्राना, छोटा वर्ड है पर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है. शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. थैंक यू सो मच गुरु जी कि हमें आपने जोड़ दिया टाइम से, ताकि हम इतने पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रहे. जो भी हो रहा है दुनिया में, कल्याण मांगो दुनिया का, सरबत दा भला, लेकिन अपने अंदर को मजबूत रखो, स्ट्रॉन्ग रखो, पॉजिटिव रखो, क्योंकि ये भी ख़त्म हो जाएगा टाइम. अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम तो आ गया हमारे लिए, तो सतयुग है. अगर आप जिस मोमेंट में भगवान के साथ बैठ के और आपने शब्द सुना, वो सतयुग आ गया. और कलयुग मेल्ट होता जाएगा. डार्कनेस इज बाउंड टू गो इफ यू ब्रिंग फोर्थ द लाइट. अगर लाइट स्विच ऑन करोगे तो डार्कनेस अपने आप डिस्पेल हो गया ना. इट्स कॉमन सेंस. तो जितनी भी लाइट है बढ़ाते जाओ. मैग्नीफाई द लाइट, मैग्नीफाई हिज ग्रेस थ्रू हिज